السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو دی بیسٹ ناولس نور محبت دھنک رنگوڑکر ریٹن بائی سمیرا شریف دور کے ایپیسوڈ نمبر 6 سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ پہلی نظر سے لے کر اب تک ایک ہی حلیے میں دیکھ رہا تھا، جین شرٹس اور ٹراؤزر میں۔ اس وقت بھی وہ اپنے ضابطہ بے ڈھنگے اور قابل اعتراض حلیے میں تھی۔ یہ شاید اس کا یہ حلیہ صرف اسے ہی قابل اعتراض لگتا تھا۔ دوسری طرف مشال کا موڈ بھی آج کسی بھی قسم کی جھڑپ اور آتش فشانی کے لیے تیار نہیں تھا۔ شاہزر کو تلوار کی طرح اپنے سر پر لٹکتے دیکھ کر جلدی سے کتابیں سمیٹ کر جانے لگی۔ سنو، تمہارے پاس کوئی ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہیں؟ وہ کوشش کے باوجود خود کو یہ کہنے سے روک نہیں پایا تھا۔ جلدی جلدی قدم اٹھاتی مشال رک گئی، حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کی نظریے اپنے وجود کے اندر تک اترتے دیکھ کر بغور اپنا جائزہ لیا۔ اسے تو ان کپڑوں میں کوئی اعتراض دکھائی نہ دیا تھا۔ وہ ہمیشہ سے ہی ایسی ڈریسنگ کرتی آئی تھی، البتہ یہاں آنے کے بعد ابیشا اور ماما کے بار بار ٹوکنے پر کبھی کبھی اسکارف لے لیتی تھی، اور اس وقت بھی اس نے اسکارف لیا ہوا تھا، جو کہ جلدی میں وہ یہیں صوفے پر ہی بھول کر جا رہی تھی۔ کیا وہ ان کپڑوں کو؟ اس کا ارادہ آج گولہ باری کا نہیں تھا، لیکن شاہزار کی نظروں میں چپت زہر لہجے سے چھلکتی گہری آگ اور اس انداز میں اس کی نظر اس کے وجود کو چھید رہی تھی۔ وہ سب اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس کی نظروں کے کاٹ اور لہجے کی آگ مشال کا رواں جھلسا گئی، لیکن وہ پھر بھی تحمل سے پوچھنے لگی، تمہیں اپنا تماشا بنوانا مقصود ہے تو بسا شوق اسی دیس میں رہتی جس کا یہ نام نہاد کلچر لے کر تم یہاں آئی ہو۔ ہم لوگوں کی اس علاقے میں بہت عزت ہے، لوگوں کی نگاہوں میں ایک خاص مقام ہے۔ ہم اپنا تماشا نہیں بنوانا چاہتے، اسی لیے آئندہ تم مجھے اس حلیے میں بھی نظر نہ آؤ۔ وہ صاف صاف بات کرنا پسند کرتا تھا، لکی لپٹی نہیں رکھتا تھا۔ اس کا اکھڑا لہجہ مشال کے لیے زہر خان تھا۔ وہ غصیلی نظروں سے اسے گھورنے لگی۔ کسی نے بھی آج تک اس کے حلیے پر اعتراض نہیں کیا تھا سوائے ابیشا اور ماما پاپا کے، اور یہ شخص بار اس کی تذلیل کر رہا تھا۔ اب کی باری سے یہ برداشت نہیں ہوا تھا۔ کیا ہے عزت تم لوگوں کی، اور کتنا مقام ہے، میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ تم اپنی یہ گھٹیا سوچ اور شرمناک نظریے کسی اور کو دکھانا مجھے نہیں۔ تم میرے گارڈین نہیں ہو، جو تم نے کہا فوراً مان لوں گی۔ اس لیے آئندہ اپنی انرجی ویسٹ کرنے مت بیٹھ جانا، مسٹر شرافت و تہذیب کے علمدار۔ اور بھی بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، اسے اس کی نظروں کی غلاظت اور سوچ کی گندگی بھی دکھانا چاہتی تھی، لیکن اچانک کون سی مصلحت تھی جو آڑے آ گئی اور وہ چپ ہو گئی۔ بکواس بند کرو بے حیا لڑکی، وہ اس کی دو بدو چلتی زبان کو دیکھ کر چیخ اٹھا۔ جو میں نے کہا ہے وہ تمہیں کرنا ہوگا، میں کسی کو رعایت نہیں دیتا۔ نہ جانے کیوں تم ابھی تک بچی ہوئی ہو۔ شکر کرو بھی صرف زبان سے سمجھا رہا ہوں، جس دن ہاتھ سے عمل کیا تو پچھتاؤ گی۔ مجھے بار بار کہنا نہ پڑے، اس لیے آئندہ تم مجھے اس حلیے میں دکھائی تھی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ جو غصے میں آ کر ایک دم چیخ اٹھا تھا، اس کے قریب آ کر اس کی گھورتی آنکھوں میں اپنی نفرت و خیز بھری آنکھیں ڈال کر انتہائی غصیلے اور اکھڑ لہجے کو کنٹرول کر کے بولا۔ وہ جھٹکے سے سر اڑا کر اسے دیکھنے لگی۔ تم بھی بکواس بند کر لو اپنی، تم مجھ پر حکم چلانے کا کوئی حق نہیں رکھتے، اور نہ ہی میں تمہاری سر خرید غلام ہوں جو تمہارے اشاروں پر سر کاٹ کر حاضر کر گی۔ شاہزار جہاں زیب اس بول سے نکل آؤ کہ تم کبھی مجھے زیر کر لو گے، میں وہی کروں گی جو میرا دل چاہے گا، انڈرسٹینڈ؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جس نڈر اور بے خوف انداز میں کہہ کر وہ جانے لگی تھی، شاہزار کا روحاں سلگ اٹھا۔ فوراً آگے بڑھ کر بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ اس کے لیے تیار نہیں تھی، ایک دم لڑکھڑائی، پھر بے پناہ غصے سے اس کی طرف گھومی۔ یو ایڈیٹ چیپ، ہاتھ میں رہو اپنی۔ غصے سے اسے بولنا مشکل ہو گیا۔ ہاتھ میں پکڑی کتابیں اس پر دھے ماری وہ کوسنے لگی اس وقت کو جب وہ اندر آیا تھا۔ حد میں ہی ہوں میڈم، البتہ تمہیں اپنی حدود سے تجاوز ہوتا دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بازو میں اپنی انگلی پر بست کے وہ انتہائی سفاکی سے کہہ رہا تھا۔ اس کے اندر تو جیسے ابال ہی آ گئے۔ انتہائی نخوت سے اس کا ہاتھ پرے دھکیل کر اپنا بازو آزاد کروایا۔ مجھے اپنی مردانگی دکھانے مت بیٹھو، ہاتھ میں بھی اٹھا سکتی ہوں، لیکن تم پر ہاتھ اٹھانا میں اپنی توہین سمجھتی ہوں۔ انتہائی حقارت سے کہہ کر وہ اس کے سامنے سے ہٹنے کو تھی کہ وہ پل بھر میں دوبارہ سامنے آ گیا۔ صوفے پر پڑا اسکارف اٹھا کر اس پر پھینکا۔ ایک مرد کو للکارنے، اس کی مردانگی کو چیلنج کرنے پر مت بھولو کہ تم ایک عام سی لڑکی ہو اور میں مرد۔ اس وقت تم میرے کمرے میں موجود ہو۔ اس کے سرخ چہرے ہوشربا وجود کو اپنی آنکھوں سے چھیدتے کہہ رہا تھا۔ شاہزار کی بات پر ایک لحظہ کو وہ سکتے میں آ گئی۔ کتنی گندی، گھٹیا، مغرورانہ اور حاکمانہ اور سطحی سوچ تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی یہ شخص اس حد تک گر سکتا ہے۔ اسے خود پر ندامت ہوئی، دکھ سے کٹ کر رہ گئی تھی۔ جو بھی تھا، ایک عرصے سے وہ اس کے لیے بہت خاص تھا۔ اپنے اوپر سے اسکارف کھینچ کر اسے دیکھنے لگی، جس کی آنکھوں کے ڈورے سرخ انگارہ تھے۔ یہ تم اوڑھ لینا، تم پر زیادہ سوٹ کرے گا مسٹر غیرت مند۔
स्कार्फ शाहजहां पर पहनकर वो तेजी से बाहर निकल गई थी और शाहजहां के पूरे वजूद को आग के शोलों के नजर कर गई थी। इसने अपने चेहरे से स्कार्फ हटाकर गोला बनाकर दोबारा सोफे पर फेंक दिया। करीब ही इंग्लिश लिटरेचर की किताबें बिखरी पड़ी थी। वो देखारे हुए जवारी लेकिन एहसास के मारे अनापड़ा शख्स की तरह सोफे पर गिरा था। विशाल बेगम, तुम्हें यह चैलेंज बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा। तुम्हारे दिमाग से लगती सोचों समेत वो इसके तस्वुर से मुखातिब था। वो इस खुदसर मगरूर शख्स को चैलेंज कर रही थी। उस चैलेंज का अंजाम भी अच्छी तरह जानती थी। बज़ाहिर बहुत सुकून से रह रही थी, लेकिन अपने अंदर की तिलमिलाहट और मगरूराना अनापरस्त मंतकामा सोच से पीछे नहीं छुड़ा पा रही थी। आज शाहजहां की मायूं थी। सारा दिन अलीशा भाभी अबीशा के कमरे में चक्कर लगाती रही। जैसे शाम का मलगज अंधेरा फैलने लगा, वो कमरे में आ गई। सारी हवेली मेहमानों और रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब से भरी हुई थी। सारे दिन शोर शराबा हंगामे सुनकर इसका सर दुखने लगा था। कमरे में आते ही डिस्प्लिन की गोली पानी समेत निकल ली। थोड़ी देर तक बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद करके अंदर की टेंशन को बाहर निकालती रही। विशाल, अभी तक यूं ही लेटी हो? बड़ी अम्मी का हुक्म है, जल्दी से तैयार हो जाओ। थोड़ी देर बाद खाने के बाद मायूं की रस्म हो गई। वो उसके कपड़े लेकर आई थी। वो इसके बजाय कपड़ों को देखने लगी। येलो हल्के काम वाला सूट था। कपड़ों से होती इसकी नज़र अलीशा के मुस्कुराते चेहरे का जायजा लेने लगी। अगर मैं ये कपड़े ना पहनूं तो? अलीशा इसके बिल्कुल सपाट बगैर किसी तासर वाले चेहरे को देखने लगी, फिर गर्दन हिलाने लगी। तो फिर मैं ज़बरदस्ती तुम्हें ये कपड़े पहना दूंगी। क्या है मिशाल, आज तुम आयु है और शादी ब्याह पर सब ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। शौक और चंचल, तुम्हारे ज़ौक़ और माइंड का ख्याल करते हुए मैंने ये बिल्कुल हल्के काम वाला सूट मुंतखब किया था। अब अगर तुमने नहीं पहना तो मेरा दिल टूट जाएगा। मैंने सबसे कह रखा है कि तुम ये कपड़े ज़रूर पहनोगी। वो मान मोहब्बत भरे लहजे में से प्रेशराइज कर रही थी। वो कुछ देर सोचती रही, फिर सर हिलाकर बिस्तर से उतरकर इसके कपड़े ले लिए। थैंक यू सो मच, तुम कितनी अच्छी हो। वो एकदम इसके गले लग गई थी, फिर इसको छोड़कर बाहर निकल गई। वो कपड़े बखौर देखने लगी। पाजामा था, साथ हरे पीले रंग की कमीज थी जिसके साइज पर हल्का हल्का काम था और साथ में लंबा सा दुपट्टा भी था। वो कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गई। कपड़े चेंज करके वापस कमरे में लौटी तो कमरे में अलीशा, ईशा, निशा और अबीशा थीं। इनके साथ दो और अनजान लड़के थे। इसकी नज़रें सबको छोड़कर अबीशा का तवाफ करने लगी। इस पर तो नज़र ठहर ही नहीं रही थी। इतना मलकोती और दमकता हुस्न था। वो बर्थ हैरत में गर्क रही। वो भी इसी की तरह हल्के काम वाले सूट में मलबूस थी। ज्वेलरी, फूलों और गजरों की झलकाने से दो अच्छा कर दिया था। वो पहचानी नहीं जा रही थी। दोनों लड़कियों में से एक जंग से लड़की से मेकअप कर रही थी और दूसरी उसका हेयर स्टाइल बना रही थी। वो वहीं टटक कर सबको देखे गई, फिर छोटे छोटे कदम उठाते इनकी तरफ चली आई। अलीशा और ईशा दोनों से देखकर इसकी तारीफ में रत्बा लिसान हो चुकी थी। मिशाल, आप ही अगर मैं लड़का होती तो फ़ौरन आप पर फिदा हो जाती। ईशा के अंदाज पर मोहरे से मुस्कुराकर अबीशा को देखने लगी। कैसी लग रही है अबीशा? अलीशा इसके नज़रों के इर्तिकाज़ को महसूस करके पूछने लगी। बहुत अच्छी और बहुत ब्यूटीफुल। वो दोनों लड़कियों को मुहारे से अपना काम करते देखकर कुर्सी खींचकर इधर ही बैठ गई। बहुत नफासत से अबीशा को तैयार करके वो इसे मुखातिब करने लगी। आए, अब आपका मेकअप कर दें। मेरा? वो हैरान हुई, पे कुछ समझ कर पूछने लगी। आप दोनों ब्यूटिशियंस हैं? जी हाँ, ये दोनों ब्यूटिशियंस हैं। शायद से हमने इनको शादी के लिए बुलवाया है। ये वलीमे तक यहीं रहेंगी। अलीशा के बताने पर वो उठकर उनके सामने बैठ गई। बहुत जल्दी उन्होंने इसे भी तैयार कर दिया था। इससे फारिग होने के बाद अलीशा और ईशा की बारी आई थी। वो एक तरफ बैठकर अपने पतले पतले सरापे का जायजा लेने लगी। एक अरसे के बाद इसने इस तरह का लिबास पहना था। ड्रेस, मेकअप, ज्वेलरी, गजरे, फूल, हेयर स्टाइल सबने मिलकर इसकी शख्सियत को यकसर बदल कर रख दिया था। इसकी बोलती ज़बान जैसे मेकअप की गहरी लपेट में गंग सी हो गई थी। वो खामोशी से अपने बाजू में मौजूद गजरों, बेतहाशा चूड़ियों, उंगलियों में मौजूद अंगूठियों को देखने लगी। सुबह सबके इसरार पर इसने मेहंदी भी लगवा ली थी। वो खामोशी से अपने दोनों हाथों पर मौजूद मेहंदी के बेल बूटे देखती रही। मेहंदी की खुशबू अंदर के सन्नाटों में एक तलातुम बर्पा कर रही थी। अपनी मखरूती उंगली पर मौजूद क्यूटेक्स को खूबसूरत अंगूठियों को देखकर बहुत जज्बस हुई। थोड़ा सा हाथ उठाकर अपने ढलकते दुपट्टे को ठीक करने लगी तो कलाइयों में मौजूद सारी चूड़ियाँ एकदम खनकने लगी थीं। चूड़ियों के दिल फरेब, दिलरुबा कनकनाहट इसके दिलो दिमाग और सोचों में अजीब व गरीब से ताश पैदा कर गई थी। जहाँ हाथ था वहीं रुक गया। अबीशा अपनी हुलिया और अपना सिंगार के बरक्स इन चारों के साथ नोक झोंक में मसरूफ थी। वो खुद से मजीद उलझने लगी। न जाने वो खुद क्यों ऐसी थी, वो आज तक न समझ पाई थी कि औरत बस एक ज़रा से लिबास की तब्दीली से इसका ज़रा अनोखी, मुनफरिद और प्यारी लगने लगती है। वो बार बार खुद से एक ही सवाल कर रही थी।
वो बहुत दफ़ा बनी सवरी थी, बहुत दफ़ा मेकअप भी किया था। अब इसे अपने हुस्न को उजागर करने के सारे गुण असबर थे। वे एक अरसे से मैंने इस्तेमाल करती रही थी। कीमती से कीमती लिबास, ज्वेलरी, मेकअप इसके पास था। बहुत दफ़ा इसने औरतों के इस दिलफरेब और शाही रूप को देखा था, आंखें सेंकी थी, दिल को मुअत्तर किया था, लेकिन आज अपने इस बनाव सिंगार में गूंजती खनकती बेनाम सी जो आवाज़ थी, एक कशिश थी, एक महक थी। वो सबसे मुख्तलिफ और मुनफरिद थी, हर नज़र आने वाले मंजर से ज़्यादा दिलकश थी, हर खुशबू से ज़्यादा मुअत्तर थी। एक पाकीज़ा सी कसक, दुनिया दिल को लुभाता एक मन पाता एहसास था, जो इसने अपनी ज़िंदगी के 25 साल में सिर्फ आज पहली दफ़ा महसूस किया था। किस कदर अनोखा एहसास था, इसकी रूह तक बेकरार हो गई। अजीब सी बेचैनी रूह और जिस्म को शीशे से छेदने लगी। वो बेदर्दी से लिपस्टिक से अटे होंठों को कुचलने लगी। दोनों माहिर ब्यूटिशियंस अपने काम से फारिग होकर अपना सामान समेटकर दोनों बहनों के साथ कमरे से चली गई थी। कमरे की खामोशी और अंदर से उठने वाली अनगिनत पुरस्रार आवाज़ों से घबराने लगी, बाहर जाने का सोच उठने लगी तो वहाँ मौजूद बेशुमार मेहमानों और इनकी उड़ती नज़रों से खाइफ होकर बिस्तर पर गिर गई। खुद से लड़ते लड़ते जैसे एकदम हार गई हो। मैं इन कपड़ों में खुद को बहुत अनईजी फील कर रही हूँ, चेंज कर लो। अभिषा इसकी बात सुनकर इसे बगौर देखने लगी। खबरदार अगर कपड़े चेंज करने का सोच अभी। कसम से पहली दफ़ा आपको इन मशरक़ी के कपड़ों में यूँ एहतमाम से तैयार देख रही हूँ। ईमान से बहुत अच्छी लग रही है, नज़र लग जाने की हद तक। उसने मिशाल की थोड़ी थाम कर तारीफ की तो वो झींप गई। इसका शर्माने का अंदाज इतना प्यारा और क्यूट था कि अभिषा ने इसे बेख्तियार गले लगा लिया। बाद में अपनी बातों से इसका ध्यान बटाने में वो कामयाब हो गई थी। इस वक्त वो दोनों किसी बात पर बेतहाशा हंस रही थी जब कमरे में मामा पापा दाखिल हुए। इनके पीछे बड़ी अम्मी, चाची ज़ैनब, शगुफ्ता भाभी, आज़र भाई, इनकी बहनें सामा, लिशा वगैरह थी। और इन सबको जो इकट्ठे अपने कमरे में देखकर चौंक गई। अभिषा ने फ़ौरन दुपट्टा ओढ़ा कर एकदम सर झुका लिया था। वो खाली ज़हन से इसके झुके सर को देखने लगी। सबसे ज़्यादा हैरानगी इस वक्त हुई जब आप पर आज़र भैया हाथ में पकड़ा एक रजिस्टर लेकर अभिषा के सामने बैठ गए थे। लो अभिषा बेटा, यहाँ पर दस्तखत करो। इनके कहने पर वो कभी इन्हें और कभी बाकी सबको देखने लगी। ये सब क्या हो रहा था? इसकी समझ से सब बालातर था। ये सब क्या है पापा? इससे पहले कभी वाकई दस्तखत करती, इसने इसके हाथ से कलम छीन लिया। दिल अंदर ही अंदर अनजाने वसवसे से बंद होने वाला था। निकाह हो रहा है। पापा ने बहुत आसानी से इसकी तरफ देखकर इसके हाथ से कलम लेना चाहा, लेकिन इस पर तो जैसे हफ्फत आसमान आ गिरे थे। इसकी आंखों के सामने अंधेरा चाह रहा था। फटी फटी आंखों से सबको देखने लगी। निकाह हो रहा है, लेकिन किससे? शौक इस कदर गहरा था कि वो मुश्किल पूछ पाई। सबकी इस तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगे। इससे पहले कोई इसके अनजाने खौफ और वसवसों की तस्दीक करता। पापा ने इसके हाथ से कलम लेकर दोबारा अभिषा को थमा दिया। नहीं अभिषा, इसने इसे रोक दिया। अब इसका निकाह कर रहे हैं और मुझे बताया तक नहीं। वो दुख से इनसे पूछने लगी, लेकिन वो कोई भी जवाब दिए बगैर अभिषा को दस्तखत करने का इशारा करने लगे। अपनी बेवकूफ़ी पर तो मिजाल का दिमाग घूम गया था। कोई से कब भी तवज्जो नहीं समझ रहा था। मक्के की तरह निकाल कर पैर फेंक दिया था। वो दुख से रोने लगी। शगुफ्ता अपनी जैसे बाहर ले जाए, इससे पहले कि वह दोबारा कलम छीन कर अभिषा को सहन करने से रोक दिया, आज़र भैया ने भाभी को कहा। वह इसका बाजू पकड़कर तकरीबन खींच कर कमरे से बाहर ले गई। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, वो क्या करे। बेबसी से रोई जा रही थी। ज़ारो कतार इसके कोमल और नरम जज्बों वाली सज्जल और मासूम जैसी बहन एक अजट गवार पढ़े लिखे वैश्य के पल्ले बांधी जा रही थी। इसको यकीन नहीं आ रहा था। बेख्तियार भाभी से अपना बाजू छुड़वा कर दोबारा अंदर की तरफ भागी तो भाभी ने इसका रास्ता रोक लिया। प्लीज़ मिशाल, जो हो रहा है ऐसे होने दो। उन्होंने इसे समझाने की कोशिश की तो इन्हें देख एक तरफ धकेल कर अंदर जाने लगी थी, लेकिन इन्हें धक्का बहुत जोर का लगा था। भाभी एकदम फिश पर गिरी थी। इनका होठ दांत की नोक लगने से फट गया था। वह तवज्जो दिए बगैर दरवाज़ा पीटने लगी जो अंदर से लॉक हो चुका था। पापा प्लीज़ दरवाज़ा खोलें। जोर जोर से दरवाज़ा पीटते वो चीख रही थी। शाहज़ाद जो सीढ़ियों के सिरे पर रेलिंग थामे सारी सूरत-ए-हाल देख रहा था। भाभी को गिरते देखकर वो भागकर भाभी की तरफ आया। इन्हें ज़मीन से उठाया तो इनका निचला होंठ खून बहने से सूख हो रहा था। वो आवाज़ खोने लगा। इन्हें छोड़कर मिशाल का बाजू दबोच कर इसके मुँह पर थप्पड़ खींच मारा था। वह जो रोज़ चीख रही थी यकदम साकित होकर इस वहशी इंसान को देखने लगी। शाहज़ाद, छोड़ दो मिशाल को। भाभी शाहज़ाद के इस तालंगेज़ रद्द-ए-अमल और गुस्से से डरकर इसकी सख्त गिरफ्त से छुड़ाने लगी। इसने क्या समझकर आपको धक्का दिया है? मैं मार दूंगा इसे, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वो शदीद गुस्से से पागल हो रहा था। भाभी इसका बाजू छुड़वा कर इसे अभिषा के कमरे में ले आई। नीचे हवेली मेहमानों से भरी हुई थी। वह नहीं चाहती थी कि किसी को मामले की कोई सुन लगे, और वो रो रही थी बड़ी शिद्दत से। इस कदर नाकदरी हुई थी इसकी। यहाँ
وہ بے یقین تھی، وہ بری تھی، وہ مانتی تھی، لیکن ماما پاپا نے اس کے ساتھ جو کیا تھا، جو کبھی ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ نہیں کرتے، بھابھی نے خاموشی سے اسے رونے دیا۔ کس سے ہو رہا ہے اس کا نکاح؟ کیا شہزاد سے؟ روتے روتے سر اٹھا کر اسے خود ہی سوال کر کے جواب مانگنے لگی۔ انہیں اس پر بے پناہ ترس آیا۔ اپنی پرواہ کیے بغیر اس کے پاس بیٹھ کر اس کا چہرہ اپنی انگلی سے صاف کیا۔ نہیں، شہزاد سے نہیں، بلکہ شاہ امیر سے اس کا نکاح ہوا ہے۔ جواب کے جواب پر ماں خیرہ سے پھیلائی بے یقین کیفیت میں ان کا چہرہ دیکھنے لگی، جہاں واقعی سکون رقم تھا۔ شاہ امیر سے؟ اس کا انداز خود کلامی کا سطح بھابھی نے سر ہلا دیا۔ اسے تو کوئی ایک نئی زندگی ملی تھی۔ وہ جو ہولناک تصور کر رہی تھی ایسا کچھ بھی نہ تھا۔ اس کی نفیس اور مختلف سی بہن ایک قدردان شخص سے منسوب ہوئی تھی۔ وہی جو اسے پہلی نظر میں اچھا لگا تھا، وہ فوراً اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ لیکن بھابھی، یہ اتنی رازداری کیوں برتی گئی؟ کیا میں اتنی ہی بری اور غیر اہم تھی کہ کسی نے مجھے بتانا تک گوارا نہ کیا؟ خیال آتے ہی وہ پھر رونے لگی۔ شہزاد کا تھپڑ تو جیسے یاد ہی نہیں تھا۔ ماما پاپا نے جو ناقدری اور غیر اہم ہونے کا تھپڑ اس کے چہرے پر مارا تھا، وہ تو شہزاد کے مارے کا تھپڑ سے کئی گنا زیادہ تکلیف دہ تھا۔ بھابھی سے چپ کرانے لگی، لیکن وہ زیادہ بگڑتی جا رہی تھی۔ کیوں کیا بھابھی؟ سب نے ایسا کیوں؟ کسی نے مجھے بتایا تک نہیں۔ وہ بھابھی سے شکوہ کرنے لگی۔ رونا تو ویسے ہی آ رہا تھا، بے اختیار، بے پناہ۔ سب کا خیال تھا کہ تم انکار کر دو گی، اس لیے کسی نے تمہیں بتانے کی کوشش نہیں کی۔ چلیں، یہ تو ابیشہ کی بات ہے، مجھے تو کسی نے یہ بھی نہیں بتایا تک نہیں کہ شہزاد کی شادی کس سے ہو رہی ہے۔ آپ سب نے مجھ سے چھپایا ہے، حتیٰ کہ نوکروں تک کو مجھے بتانے سے منع کر دیا گیا ہے۔ اس نے یہ کوئی شکوہ کیا؟ بھابھی نظریں چرانے لگی۔ پلیز بھابھی، مجھے بتائیں اس حویلی میں کیا ہو رہا ہے؟ پلیز بھابھی، میری خاطر مجھے بتائیں اصل بات کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے یہ اور کیا ہونے والا ہے؟ بتائیں پلیز، نہیں تو میرا دل بند ہو جائے گا۔ میں ساری زندگی خود کو سنبھالتی آ رہی ہوں، ایسا نہ ہو کہ اب بکھر جاؤں۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، جیسے ابھی کچھ اور ہونا ہے، جیسے ابھی کوئی اور سازش باقی ہے۔ پلیز بھابھی۔ وہ ان کے ہاتھ تھام کر منت پر اتر آئی۔ پلیز بھابھی۔ وہ مزید عاجزی پر اتر آئی۔ شہزاد کی شادی تم سے ہو رہی ہے۔ ایک طویل گہری سانس خارج کرتے انہوں نے آخر انکشاف کر ہی دیا تھا۔ واٹ؟ انکشاف کو یہ بم پہلے سے زیادہ تباہی مچا گیا تھا۔ کوئی کمرے کی چھت اس پر آ گری تھی۔ بے یقین نظروں سے بھابھی کو دیکھنے گئی۔ نہیں، دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، بالکل غلط۔ آپ پلیز کہہ دیں جھوٹ ہے، یہ میں غلط سن رہی ہوں۔ وہ ان کے ہاتھ جھٹکا پھٹ پڑی تھی۔ دھوکہ ہوا تھا اس کے ساتھ، یہاں سب کچھ پہلے سے طے تھا، باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت یہ سب ہوا تھا۔ بابا کا مقصد اسے پاکستان لانا تھا اور اپنی سوچی سمجھی اسکیم کے تحت اسے پاکستان لے آئے تھے۔ یہاں آ کر انہوں نے اس کی طرف سے بالکل منہ موڑ لیا تھا۔ وہ اپنے خجالت و شرمندگی مٹانے کو سب سے الجھتی رہی۔ سب بالا ہی بالا طے تھا اور وہ کم عقل سمجھتی رہی کہ ماما پاپا اپنے وعدے پر قائم ہے۔ اسے تو ماما سے کبھی توقعات ہی نہیں تھی، لیکن انجانے میں اسے ہی وہ پاپا پر کافی اعتماد کرتی تھی۔ لیکن ان کی خاموشی میں چھپا طوفان وہ اب جان پائی تھی۔ انہوں نے پہلے باقاعدہ منصوبے کے تحت شاہ امیر اور ابیشہ کا نکاح کروایا تھا اور اب کل اس کی شادی شہزاد سے کروا دیں گے۔ ساری اسکیم ایک دم اس پر کھل دی گئی تھی۔ اسے اپنا آپ ایک گہری دلدل میں اترتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے لگ رہا تھا کہ شہزاد کا وجود ایک گندگی ہے اور اب اس کے ماں باپ بھی اسے بھی اس گندگی کے ڈھیر میں داخل کر دیں گے۔ پھر وہ مزید سوچ اس کی سانسیں بند ہونے لگی۔ ساری عمر اس شفاق انسان کے لیے تختہ مشق ہی بنی رہے گی، ساری عمر اس ناپسندیدہ بندے سے وابستہ رہے گی جس کے ساتھ زندگی گزارنے کی کبھی اس نے چاہ نہیں کی تھی۔ اب کھلا کہ وہ اسی سے رشتے ناطے جوڑنے پر مجبور تھی۔ یہ کیسی چاہ تھی، کیسی بے بسی تھی، یہ کیسا جنون تھا۔ اسے ایک ایک کر کے شہزاد کے سارے رویے یاد آتے گئے، پہلے دن سے لے کر اب تک کے سارے رویے۔ نس نس میں چنگاریاں بھرنے لگی۔ ان کی بات پر تن تنا کر کمرے میں چکر لگانے لگی۔ نہیں نہیں بھابھی، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، میں یہ کبھی بھی نہیں ہونے دوں گی۔ بھابھی اس کے ارادے دیکھ کر دہل گئی۔ جذبات میں بہہ کر ان کے منہ سے سچ نکل گیا تھا، لیکن مشال کا ریاکشن دیکھ کر پچھتانے لگی۔ اپنی جلد بازی اور کم صبری پر ہاتھ مارنے لگی۔ سب نے کس قدر سختی سے اسے کچھ بھی بتانے سے منع کیا ہوا تھا، وہ اس قدر شدید سے رد عمل دیکھ کر ڈر گئی۔ سن لیں بھابھی، اور سب کو جا کر کہہ دیں کہ یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ میں اس حویلی کی سینٹ بجا دوں گی، سب ختم کر دوں گی۔ اگر کسی نے یہ سوچا بھی، میں مار ڈالوں گی خود کو، لیکن اس کمینے رذیل انسان کے ناپاک ارادوں کو پورا نہیں ہونے دوں گی۔ وہ کھا جانے والی نظروں سے انہیں دیکھتی کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ اپنے کمرے میں واپس آئی تو وہاں سوائے ابیشہ اور ماما کے کوئی نہیں تھا۔ ہو گیا تمہارا نکاح؟ وہ چبا چبا کر کہتی چپتی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ابیشہ نے سر جھکا لیا۔ ابیشہ، ماما اور پاپا، آپ سب لوگ کتنے بڑے ایکٹرز ہیں، لیکن افسوس میں جو خود کو بہت عقل مند تصور کرتی تھی، آپ لوگوں کو نہ سمجھ سکے۔
इतना बड़ा धोखा दिया तुम लोगों ने मुझे, कितनी हैरत की बात है ना। जिन्हें मैं आज तक धोखा ना दे पाई उन्होंने मुझे धोखा दिया है। जिनकी खातिर मैं इतनी दूर यहाँ तक आ गई उन्होंने ही मेरे साथ धोखाबाजी की। जिनको मैं आज तक अपना मुहाफ़िज़ समझ रही वो लुटेरे बन गए। मेरे एहसासात के, मेरे एतमाद के, जिनके साथ मुझे सारी दुनिया से बढ़कर यकीन था, उन्होंने मेरे साथ का फ़ख्र और एतमाद मुझसे छीन लिया। ज़रूरत से भी हक़ीर कर दिया आप लोगों ने मुझे। मामा अबीशा देखें, मैं ज़रूरत से भी हक़ीर हो गई हूँ। इतना सस्ता समझ लिया था मुझे जो यूँ 2 टके के इंसान को सौंप रहे हैं। इतनी बेमायो अज़रा थी जो आप लोग यूँ तिनकों की तरह फ़िज़ा में बिखेरने की धुन में मस्त है। आखिर क्या हूँ मैं और क्या हैं आप, वो रोते रोते कह रही थी। लेकिन मामा ये जान ले अच्छी तरह, मैं अबीशा नहीं हूँ, मैं मिशाल हूँ। अबीशा ने आपके फैसले पर रज़ा और रग़बत गर्दन झुकाई, लेकिन मिशाल नहीं झुकाएगी और ना ही मुझे आप में से कोई रज़ील इंसान से शादी पर मजबूर कर सकता है। इसकी आखिरी बात पर मामा ने बहुत हैरान होकर अबीशा को देखा। इसकी भी कुछ ऐसी ही कैफियत थी। क्यों इतनी हैरान क्यों हो रही हैं आप दोनों? आपका ख्याल था कि जिस तरह आइन वक्त पर अबीशा के सिलसिले में मुझे चुप करवा दिया है, इसी तरह इस कमीने इंसान के लिए भी प्रेशराइज कर लेंगे मामा। आई से टू सॉरी, आप किसके मुँह लट गए। सारी प्लानिंग और मनसूबाबंदी गलत गई, क्योंकि मुझे सब कुछ पता चल गया है। वही बात जो आप सब लोग मुझसे छुपाते रहे, अनजाने में मुझे ही पता चल गई। काश आपके ये चेहरे देखने से पहले मैं मर जाती, काश आपके साथ जहाने से पहले मर जाती, काश ये रिश्ता कभी ना हुआ होता, काश मैं कभी पैदा ही ना हुई होती। मैं मर तो सकती हूँ मामा, लेकिन ये शादी कभी नहीं करूँगी। और सुन लें, ये सिर्फ आपका फैसला है और आप जाने मैं बहुत पहले इस रिश्ते को ख़त्म कर चुकी थी। अब मेरा इस शख्स से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप मेरी पसंद और मर्ज़ी के बगैर मेरी शादी नहीं कर सकते। जब मेरे इस्लाम ने मुझे पसंद नापसंद का हक़ दिया है, तो फिर आप कौन होते मुझसे ये हक़ छीनने वाले। इसका दिल पाताल में डूबा हुआ था। वो रोती रही थी, ऐसा आप जैसे टूटने बिखरने के सब्र आज़मा मराहल से गुजर रहे थे। वो बड़ी से बड़ी बात फिर भी चट्टान की तरह सख्त रही थी। कभी किसी के सामने आँख से आंसू टपकने नहीं दिया था, कभी किसी के सामने कमज़ोर नहीं पड़ी थी। सब समझते थे ये ऊंची खड़ी नाक वाली मगरूर मिसाल कभी भी नहीं रो सकती, लेकिन इसे आज इल्म हुआ। वो बरसों से रो रही है, कतरा कतरा दिल ख़त्म होता जा रहा है। वो बरसों किसी की तलाश में रही थी, लेकिन आज बिल्कुल बेबस हो गई थी। सारी जुस्तजू एक नुक्ते पर जमकर अपना मरकज़ खो बैठी थी। वो बरसों खुद को तिनका तिनका करके इकट्ठे रखने की कोशिश में हलकान हो रही थी। आज सिर्फ अपने माँ बाप की नाकदरी के सबब अंदर तक टूट गई थी। कुर्ची कुर्ची होकर लहूलुहान हो गई थी। कोई समेटने वाला नहीं था, कोई दर्द का दर्दमा नहीं था, कोई आंसू जो नहीं था, कोई रफ़ो-गर नहीं था। वो इस भीड़ में अपने लोगों के हजूम में कहाँ जाती। यहाँ तो इसे अपना कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। इसे लग रहा था कि जैसे सब नकाब ओढ़े हुए हैं। अगर इसे नकाब उठाने की ज़रा सी भी कोशिश की तो अंदर से भयानक चेहरे निकलते आएंगे। वो वहीं बैठकर फूट फूट कर रोती रही। इतने दिनों की तैयारियों और सरप्राइज़ वो अब समझ पाए थे। जब सिर्फ एक रात का वक्त बचा था, वो क्या करे, कहाँ जाए। सामने जहरीला नाग इसे निकलने को फन फैलाए खड़ा था और पीछे काय थी। इसे बचाव का रास्ता नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि दाएं बाएं दीवारें ही दीवारें थी। रिश्तों की दीवारों ने इसके पांव जकड़े हुए थे। अंधे की जंजीरों में वो कैसे भागती, कैसे बचती, से कुछ समझ नहीं आ रही थी। छोटों से लेकर बड़ों तक सबने इसके सामने एक भरपूर एक्टिंग की थी। कितनी काबिल सराहमता थी, किसी शुबा तक होने नहीं दिया। वो बुरी तो डंके की चोट पर थी, ना कभी गलत किया था और न सोचा था, न लगी लिपटी रखी थी। जो दिल में होता वही नौ के ज़ुबान पर से चाहती थी। हमेशा अपना ख्याल रखा था। चाहती तो जोरों से शादी करके मामा पापा को खैर खबर कर देती। ये सब करने इसके लिए कुछ मुश्किल न था। इस मुआशरे में हर कोई इसी तरह शादी रचाता है, लेकिन इसने ये सब नहीं किया था। वो हर काम बहुत फेयर होकर करती थी। अपने हर मामले में इनकी रज़ा मलहूज़ हाजिर रखती थी। इनकी दुआओं में ही इससे शादी करना चाहती थी। इनकी रज़ा की खातिर इतना चाहते हुए भी इसे मामा पापा के साथ आना पड़ा था, और यहाँ आकर वो मोड़ मोड़ पर ज़ख्मी हुई थी। अबीशा इसको यूँ फूट फूट कर बिखरते रोते देखकर संभालने लगी। इसे तो जो चोट लगी थी वो नाकाबिले मरहम थी। फिर भला दर्द में कैसे कमी आती, वो पत्थर बनी रोती रही। अबीशा क्या झटकती है, कितना तसाद होता है लोगों के ज़ाहिर और बातिन में। जिनके साथ वो बरसों रही, उन्होंने इसे यूँ बुरी तरह तोड़ फोड़ दिया था। वो किससे शिकवा करती, इस शाहज़ाद से जो बारहा इस पर हाथ उठा चुका था, जिसने कई दफ़ा अपने गलीज़ ख्यालात का इज़हार किया था। वही लोगों से शिकवा करती जिनकी हवेली में वो इस वक्त मौजूद रो रही थी।
लेकिन किस बुनियाद पर इसे दुख तो इसके अपने वालिदैन ने दिया था। इसे तिनकों से भी हल्का करने वाले इसके माँ बाप थे। बेबस और लाचार और तनहा करने वाले कोई और नहीं थे, इसे अपने जन्म देने वाले थे। इसका एतमाद रेजा रेजा करने वाला कौन था? कोई भी नहीं सिवाय इसके अपनों की, जिन्होंने एक मुद्दत तक जाती आई थी। कभी खुल कर इज़हार नहीं किया था, मोहब्बत के लिए लफाजी नहीं थी, लेकिन कभी बेखबर भी नहीं रही थी। वो लाख नादान, बुरी और काबिल सज़ा थी, लेकिन इस कदर भी नहीं थी कि इस घटिया सज़ा की हकदार ठहरती। इसे कमरे के मान में शदीद घुटन का एहसास हो रहा था। सांस लेना दुश्वार था। वो यहाँ से कहीं भाग जाना चाहती थी, बहुत दूर, सात समंदर पार, इन्हीं खैरों के देश में, जहाँ कम से कम हार तो नहीं होती थी, जहाँ वो अपनी मर्जी से जो चाहती कर दिखाती थी कि कोई इसे चैलेंज बना कर आने को तैयार नहीं था। वो अबीशा और मामा की तरफ देखे बगैर फौरन उठी थी और भागती हुई जीना तय करके नीचे आ गई। सारा 16 सिंगार बह चुका, हाथों में गजरी नोच कर फर्श पर फेंक दिए। सुर्ख गुलाब जिसके आंसू की शिद्दत के गवाह इसके नहीं पैरों से नीचे आकर कुचल गए। वो अपनी बेकदरी पर वो भी चीखे थे, लेकिन औरों की तरह इसने भी अपने ऊपर बेइज्जती सफाकी का खोल चढ़ा लिया था। रास्ते में आने वाले किसी भी परवाह के बगैर वो बाई सहन में आ गई। पापा मर्तब में खड़े थे, एक लम्हा को रुकी थी, बेसर झटक कर इन तक पहुंची। इनके इर्द गिर्द मुख्तलिफ लोगों के अलावा आजब भाई, शाहजर और शामिर भी थे। वो बाकी सबको नजरअंदाज के पापा से मुखातिब हो गई, किसी भी तरफ देखे बगैर बिल्कुल अटल लहजे में। पापा, मुझे आपसे एक बात करनी है। वो चंदा में इसके फैसला को इन दो टुक लहजे पर गौर करते इसकी सपाट निगाहों में देखते रहे, फिर गर्दन हिलाकर इसके साथ चलते आए। जैसे वो कमरे में दाखिल हुए वो फट पड़ी। पापा, मुझे शाहजर से शादी नहीं करनी है, आप अपना वादा याद करें। आपने कहा था कि आप मुझे वापस भिजवा देंगे, तो फिर अब आप अपने वादे से क्यों फिर रहे हैं? ओह, तो तुम्हें इल्म हो गया है, तुमसे तो वादा मैंने अब किया है। लेकिन आज से 25 साल पहले जब तुम पैदा हुई थी, तब एक वादा मैंने जहाँ से भाई, अम्मा जी और आका जी से भी किया था। इतने बरस गुजरने के बाद भी मैं अपने वादे से किसी भी सूरत मुनकर नहीं हो सकता। हर हाल में मुझे एक वादा निभाना है, मैं ये वादा निभाऊंगा। तुमको हर हाल में शाहजर से शादी करना होगी और ये फैसला हो चुका है। पापा को इसका यूं दो टुक अंदाज बहुत नागवार गुजरा था। तअम्मुल से मगर सख्त लहजे में से बावर कराने लगे। वो चटक गई। नहीं पापा, आप इतनी बड़ी ज्यादती नहीं कर सकते, मेरी पसंद के बगैर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। मैं अपने फैसले के सिवा किसी के भी फैसले को नहीं मानती। वह नफे में सर हिलाती कह रही थी। हैरत है पापा, आपका कब्र में मौजूद मुर्दा लोगों से किए गए वादों का इतना पास है, और जो जिंदा है इनकी कोई अहमियत ही नहीं आपकी नज़र में। वह तरशी से कह रही थी। मिशाल, बात करते वक्त अदब आदाब को मत भूला करो, याद रखो मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुमसे कुछ भी मनवाने का हक रखता हूँ, और इस वक्त तुम बरतानिया में नहीं पाकिस्तान में हो। उन्होंने सख्त लहजे में कहकर अपनी असलियत दिखा दी थी। वो तासुब से सर हिलाने लगी। यही याद रखकर तुम्हें अजियत से आ रही हूँ पापा, काश मुझे यहाँ आने से कबल नकाब के लपेट में छुपा आपका ये दोगला चेहरा नजर आ जाता, तो यहाँ आने का कभी नहीं सोचती। मर जाती, लेकिन आपकी बेटी का हलवाना गवारा न करती। बहरहाल जो कुछ भी है, मुझे इसकी कोई गज़ नहीं। इस खानदान में और भी बहुत सी लड़कियाँ हैं जिससे मज़े इस पर अपनी तहजीब जदीम भांजी की भतीजी की शादी कर दें, लेकिन मुझसे नहीं। आपको अगर मुर्दा कब्र में मौजूद लोगों से किए गए वादों का इतना पास है, तो एक जिंदा जीते जागते वजूद से एक वादा मैं भी कर आई हूँ। मैं वह वादा हर हाल में निभाऊंगी, चाहे मुझे अपनी जान भी गंवानी पड़े तो दरीग नहीं करूँगी। वो इन्हीं की बेटी थी, इसी खानदान की लड़की थी, इसके रगों में इसी खानदान का खून दौड़ रहा था। वो किसी से डरती नहीं थी। वे जब बॉर्डनेस तो इनकी अपनी अदा करता थी, वो क्यों कर मानती। साफ कहकर इनको सोचते छोड़कर बाहर निकल आई। कमरे में आकर बिस्तर पर गिर गई। मामा कमरे में मौजूद नहीं थी, और अबीशा ने इससे एक दो दफ़ा बात करना चाहिए तो इसने इसे पूरी तरह झड़क दिया। वो बेचारी दिल महसूस कर रह गई। मेरा क्यों कसूर है, मुझसे क्यों नाराज़ हैं? वो रोने लगी थी। वो तरफीज़ से देखने लगी। तुम्हारा ये कसूर है कि तुम इस साजिश में बराबर की शरीक थी। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती थी, तुम्हारी हर बात मान लेती थी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खातिर यहाँ तक चली आई, और तुमने भी औरों की तरह ही मुझे धोखा दिया। काश मैं तुम्हें समझ सकती। नहीं मिशाल आपी, खुदा गवाह है, मैंने कभी आपके लिए बुरा नहीं चाहा था। मैं तो खुद कुछ नहीं जानती थी। मुझे भी यहीं आकर हवेली में ही पता चला कि मामा पापा आपकी शादी वहीं शाहजर भाई के साथ तय करके आए हैं। बहुत अच्छी तरह झूठ बोल लेती हो, इतनी सफाई से कि औरों की तरह तुम्हारी असलियत दिखाई नहीं देती। तुम तो इतनी बेखबर हो कि ये भी पता नहीं होगा कि आज तुम्हारा शामी से निकाह हो रहा है ना? बल्कि मामा पापा ने ज़बरदस्ती तुम्हें इसकी बीवी बना दी है। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ कितनी सफाई से तुम बोल गई हो। वो हकारत से तंज करने लगी।
हाँ, मैं सच कह रही हूँ, मैं भी कुछ नहीं जानती थी और शामी से निकाह के मुतल्लिक मुझे सुबह ही मम्मा पापा से पता चला है। वो सफाई पेश नहीं करना चाहती थी लेकिन मजबूर हो गई थी। अच्छा, वाकई कुछ इल्म न था। मैं अब तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं करूँगी, झूठ है और सब धोखा है। वो वाकई हमेशा की किसी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं थी। सुनो, तुम्हें इल्म तो होगा कि मेरा पासपोर्ट कहाँ है। अबीशा के मुसलसल बहते आंसुओं ने इसे अपना गुस्सा कम करने पर मजबूर कर दिया था। हाँ, इल्म तो है लेकिन वो मिशाल के इरादे कुछ समझ रही थी। तो प्लीज़ अबीशा, मेरी अच्छी सिस्टर, मुझे बुला दो। मैं यहाँ से चली जाना चाहती हूँ, 1 मिनट भी इस जन्म में नहीं रुक सकती। दम घुट रहा है मेरा इस कैद खाने में। प्लीज़ मेरा ये काम कर दो, मैं सारी उम्र तुम्हारी मशहूर रहूँगी। प्लीज़ अबीशा। मुझे किसी के सामने झुकी नहीं थी। इस वक्त मिन्नत मजद कर रही थी, रो रही थी, लेकिन मुझे शपंज में पड़ गई। प्लीज़ इनकार मत करो, नहीं तो मैं मर जाऊँगी, या फिर इस शख्स से शादी रचाने से पहले खुद को ही मार डालूँगी। और तुम जानती हो, मैं जो एक दफ़ा कहती हूँ कर दिखाती हूँ। वो इसे धमकी देने लगी। मैं मिशाल की धमकी और ख़ास तौर पर संजीदगी देकर डर गई। तुम सिर्फ एक दफ़ा मेरा पासपोर्ट ला दो, बस मैं इस काम से निकल जाना चाहती हूँ। आगे मुझे क्या करना है वो मैं अच्छी तरह सोच चुकी हूँ। वाज़े पर उतर आई थी। अबीशा के लिए से इनकार करना मुश्किल हो गया। ये जो शादी हो रही है इसका क्या होगा? वो पूछे बगैर न रह सकी। वो ज़हरखंद हंसी। मैंने बारहा इनकार किया है, फिर भी मेरी मर्ज़ी और पसंद के बगैर ये सब किया जा रहा है। अगर मौका होता तो शायद कहीं गुंजाइश निकल आती, अब ये नामुमकिन है। मैं इस शख्स से हरगिज़ शादी नहीं करूँगी, इसने साफ जवाब दिया। ओके, फ़िलहाल मैं कोशिश करती हूँ आपका पासपोर्ट आपको ला दूँ, आप रिलैक्स हो जाए। नहीं अबीशा, कोशिश नहीं, तुम्हें हर हाल में मेरा ये काम करना होगा, किसी को बगैर बताए और ख़बर किए। नहीं तो तुम मुझसे अच्छी तरह बाखबर हो कि मैं किस हद तक जा सकती हूँ। इसका सर्द मेहरअंदाज आदमी संजीदा था। मैं इसमें छुपी धमकी अच्छी तरह समझ चुकी थी। बरसों का साथ था। ध्यान से, अगर किसी को इल्म हो गया तो। अबीशा की मुतफक्कर आवाज़ पर इसने सर हिलाया। अभी रात का अंधेरा पूरी तरह छूटा नहीं था। आसमान पर कहीं कहीं सितारे अभी भी मौजूद थे। अजान होते ही मम्मू अंधेरे अपने अपने कमरे से निकल आई। एहतियातन इसने अबीशा के कपड़े पहन रखे थे। पाँव में जॉगर्स थे। शोल्डर बैग में 2 शर्ट्स और जीन्स ढूंढ रखी थी। अबीशा ने इसे इसका पासपोर्ट और साथ में थोड़ी बहुत रकम भी ला दी थी। कमरे से निकलने से पहले इसने अपने गले में मौजूद भारी तलाई चेन, अंगूठी से अंगूठियाँ और कानों से टॉप्स उठा के इसको पहना दिए थे। बज़ाहिर ये हल्का फुल्का ज़ेवर था, लेकिन किस कदर कीमती और बेश बहा था वो अच्छी तरह जानती थी। इसे सफ़र में इनकी ज़रूरत पड़ सकती थी। वह रखना नहीं चाहती थी, लेकिन इसे अबीशा किस तरह के सामने झुकना पड़ा था। प्रिंस ने आखिरी तोहफा समझ कर सब चीज़ें पहन ली थी। अबीशा इसके लिए बहुत बड़ा रिस्क ले रही थी। वो दिल से इसकी मशहूर थी। बड़ी सी चादर लपेट कर जैसे ही गेट के पास पहुंची, पीछे से आती आवाज़ सुनकर रुक गई। दरख्त के कम में जायज़ा लेती अबीशा का दिल भी बंद होने वाला था आवाज़ सुनकर। कौन हो तुम? आवाज़ पर पलट कर उसने देखा तो चौकीदार था। इसने पुरसकून सांस ली, धड़कते दिल पर हाथ रखकर इसे तसल्ली दी। मैं हूँ खान बाबा, बस ये नज़दीकी खेतों तक जा रही हूँ। अपना चेहरा इसने एक तरफ से छुपाते हुए बहुत आहिस्ता आवाज़ में जवाब दिया। इतनी सुबह? नहीं छोटी बीबी साहब, बड़े सरकार ने इतनी सुबह किसी को भी कहीं जाने से मना कर रखा है। आप अंदर चली जाएं। चौकीदानी से साफ लाल झंडी दिखाई दी थी। वो मरे मरे कदम उठाते वापस लॉन की जानिब आई। दरख्त के पीछे खड़ी अबीशा फौरन निकल के इसके सामने आई। अब क्या होगा? वो बहुत हरास हो रही थी। वो सोचने लगी। अचानक एक ख्याल जहन में आया, आओ मेरे साथ। वो इसका हाथ पकड़ कर हवेली के कब में आ गई। मैं इधर से चली जाऊंगी, बस तुम अपना ख्याल रखना और प्लीज़ किसी को हर किस्मत बताना। चादर को एहतियात से लपेट कर उसे गले लगा कर कहने लगी तो वो रो दी। लेकिन आप यहाँ से जाकर आगे क्या करेंगी? अल्लाह मालिक है, कुछ न कुछ तो कर ही लूँगी। जब कदम बाहर निकालने का सोच ही लिया है तो फिर मुसीबत से क्या डरना। बस इस मनहूस काम से एक दफ़ा निकल जाऊँ। इसे तसल्ली देकर वह एहतियात से बैग कंधे पर डालकर दरख्त पर चढ़ने लगी। दरख्त इतना बड़ा नहीं था। सुबह के अंधेरे में फौरन चढ़ गई थी। फिर दरख्त से दीवार पर पाँव रखकर अबीशा को आखिरी नज़र देकर और वो हाथ हिला रही थी। वह भरी भरी आंखों से खुदाहाफिज़ कह रही थी। इसकी अपनी आंखें भी भरने लगी। चंद सेकंड से इसे कदे खड़ी देखती रही, फिर अलविदाई नज़र डालकर दीवार की दूसरी जानिब छलांग लगा दी। काफ़ी ऊंची दीवार थी। फौरन ज़मीन पर गिरने से इसे तो झटके लगे थे। इसकी सारी चोलें हिल गई थीं। फिर फौरन अपने आवाज़ बहाल करके हाथ जोड़कर उठ खड़ी हुई। चंद मिनट सोचती रही। इसकी निगाहों के सामने दूर दूर तक वसी और इस खेतों का सिलसिला फैला हुआ था। आजकल तो फसल भी इकट्ठी हुई थी, नहीं तो वो ओट में आराम से निकल जाती। फिर कुछ सोचकर इसने रास्ते का तयन किया। बचपन का रास्ता तो खेतों में से होता पक्की सड़क तक जाता था। अब वो रास्ता नहीं था। कुछ देर शशपन में मुब्तला रही, फिर बिस्मिल्लाह कहती हुई एक कच्चे रास्ते पर हो ली। बहुत ही एहतियात से चलते हुए भी खेतों में पानी भरी जगहों पर गिरते गिरते बची थी।
اس نے فرار کا کافی مشکل راستہ منتخب کیا تھا۔ اندھیرے کی خیالی سیاہی چادر ہٹی تو سورج روشنی ہر سو پھیلنے لگی۔ مرد اپنے جانوروں کو ہانکتے کھیتوں میں آنے لگے تھے۔ بعض عورتیں بھی کھیتوں میں دکھائی دے رہی تھیں۔ کچے راستوں پر بہت تیز نہیں چل سکتی تھی، جبکہ وہ یہاں سے جلد از جلد نکلنا چاہتی تھی، اس سے پہلے کہ حویلی والے اس کو موجود نہ پا کر اس کی تلاش میں سرگرداں ہو۔ کافی دیر تک چلتے اس کے پاؤں تھکنے لگے تھے۔ بھوک سے پیٹ الگ فریاد کر رہا تھا۔ رات کو بجے تک غصے میں اس نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگائے، تب تو بات ہی دوسری تھی۔ کافی دور جا کر اسے احساس ہوا کہ وجہ سے راستہ بھٹک گئی ہو۔ آدھا گھنٹہ پہلے وہ اس میں کھیت میں سے گزری تھی اور اب آدھے گھنٹے بعد بھی اسی کھیت کے سامنے کھڑی تھی۔ یہ خیال آتے ہوئے ایک دم پریشان ہو گئی تھی، جب ماتا مثال ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ کھیت میں ایک مرد ٹوکے پر چارہ کاٹ رہا تھا۔ اسے چند قدموں کے فاصلے پر بھینسیں باندھی ہوئی تھیں اور دوسری طرف ٹیوب ویل چل رہا تھا۔ پانی دیکھتے ہی پیاس کا احساس دو چند ہونے لگا۔ قدم خود بخود ٹیوب ویل کی طرف اٹھنے لگے۔ میں پانی پی لوں؟ چارہ کاٹتا مرد رک گیا تھا۔ اتنی حسین و جوان لڑکی اس کے سامنے اکیلی تن تنہا کھڑی پانی پینے کی اجازت مانگ رہی تھی۔ گہری سوچتی نظروں سے اس کو دیکھتے وہ سر ہلانے لگا۔ وہ اسے نظر انداز کر کے پانی پینے لگی۔ کافی ٹھنڈا اور میٹھا پانی تھا۔ پی کر دو چار چھینٹے منہ پر مارے۔ شکریہ۔ ویسے بھائی، پکی سڑک تک کھیتوں میں سے کون سا راستہ جاتا ہے؟ وہ کافی مشکل میں تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے اس سے راستہ پوچھنے لگی۔ اس آدمی نے چونکے سے بغور دیکھا۔ بڑی کوئی سی نظریں تھی اس کی۔ مشال نے محسوس نہ کیا ادھر سے جائیں تو یہ راستہ پکی سڑک پر تک چلا جائے گا۔ اس نے اپنے دائیں طرف واقع کھیت کی طرف اشارہ کیا تو فوراً قدم بڑھانے لگی۔ جاری ہے۔ تو ویورز کیسی لگی آپ کا ایپیسوڈ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئے آنے والے ناولز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔